رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله المولانا العظيم. یہ سورۃ الانعام کی 65ویں اور 66ویں آیت ہے. ان سے پہلے جو آیتیں آئیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کا بیان فرمایا اور کمال علم کا بھی اس میں بیان ہوا. اس سے پہلے یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان کفار کہیں پھنس جاتے ہیں تو اس وقت جو ان کے اپنے معبود ہیں بت وغیرہ وہ سب بھول جاتے ہیں. صرف اس وقت وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. جب وہ اندھیروں میں پھنس جاتے ہیں یا جنگل میں کہیں پھنس گئے یا اسی طرح سے سمندر میں کہیں پھنس گئے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر اللہ رب العزت نے آج ہم کو نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. یہاں سے جانے کے بعد بالکل نافرمانی نہیں کریں گے. بس یہ آخری مرتبہ اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی تو ہم اسی کو پکاریں گے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے اور کوئی نجات نہیں دیتا. اور صرف یہی نہیں ہے کہ جس وقت آپ سمندر میں ہوں یا اندھیرے میں کہیں پھنس گئے جنگل وغیرہ میں، بلکہ ہر سختی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی تم کو نجات دیتا ہے. لیکن ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. یعنی میں بچاتا ہوں تم کو بڑے بڑے مصائب سے بھی اور چھوٹی تکالیف سے بھی، تو اس وقت تم وعدہ بھی کر لیتے ہو، ارادہ بھی کر لیتے ہو آئندہ ایسا نہیں کریں گے. لیکن پھر جب آپ وہ جو بلا ٹل جاتی ہے تو جب آپ ذرا مطمئن ہو گئے اور دیکھا کہ بھائی اب تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تو اس وقت پھر تم وہی حرکتیں کرنے لگتے ہو جو تم پہلے کرتے تھے. تو اور تم نے صرف منحصر سمجھا ہے کہ بس سمندر میں تو خطرہ ہو سکتا ہے، اب خشکی میں آگے اب کوئی خطرہ نہیں ہے، یا جنگلات میں تو خطرہ ہو سکتا ہے. اب تو بستی میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب جب آئے گا اس کے لیے سمندر کا ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. وہ عذاب تو کہیں بھی آ سکتا ہے اور کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اور وہ عذاب کی شکلیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں وہی فرماتے ہیں، اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں. قل هو القادر، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، هو القادر، وہ اللہ رب العزت قدرت والا ہے. کیا قدرت ہے اس کو؟ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس بات پر وہ قادر ہے کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر لوگوں عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ اوپر سے آسمان سے عذاب نازل کر لے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب تم تک پہنچائے، وہ بھی قدرت ہے اور یہ بھی قدرت ہے. اور یہ عذاب جو اللہ نے یہاں فرمائے، یہ اس کا نمونہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا ہے. مثلا آسمان سے عذاب
आने की क्या क्या शक्लें हैं। तो 2 शक्लें हो गई, अभी पहले तीसरी शक्ल आएगी। औ यलबिसकुम शिया, या ये कि अल्लाह तबारक ताला तुमको मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बाँट देगा। और वयुज़ीक़ बाज़कुम बासबाज़, फिर चखा देगा तुमको एक की लड़ाई से दूसरे को तकलीफ़ और इसकी वजह से इसको। तो 3 शक्लें यहाँ बता दी। क्या एक शक्ल तो बताई कि आसमान से अज़ाब आएगा, एक शक्ल तो ये बता दी कि ज़मीन से अज़ाब आएगा, और एक शक्ल तो बता दी कि आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा और लड़ाइयाँ हो जाएंगी और जंगें हो जाएंगी, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, तो एक दूसरे के घरों को जलाएंगे, एक दूसरे के अफराद को मार डालेंगे, तहो बर्बाद कर लेंगे। तो ये भी अज़ाब की एक शक्ल है। तो यहाँ अज़ाब इलाही की 3 किस्मों का तज़किरा है। एक जो ऊपर से आए, और दूसरा जो नीचे से आए, तीसरा जो अपने अंदर से फूट पड़े, अपने अंदर से, कि ना आसमान से आए ना ज़मीन से निकले, बल्कि अपने अंदर से फूट पड़े। ये 3 शक्लें। और यहाँ एक लफ्ज़ आया अज़ाबन, अरबी में इसको कहते हैं नकिरा। नकिरा के मतलब कामन ना हो, उस पर उस वक्त अलिफ और लाम नहीं लगाया जाता है। अज़ाबन इसका मतलब यह है कि उसकी भी कोई एक शक्ल नहीं होगी, मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। आसमान से अज़ाब आने की भी एक शक्ल नहीं, बेशुमार शक्लें हो सकती हैं। ज़मीन से अज़ाब आने की भी एक ही शक्ल नहीं है, मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। और आपस में फूट पड़ जाए तो उसके अज़ाब की भी एक शक्ल नहीं है, उसकी भी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। ऊपर से अज़ाब आने की मिसालें कुरान पाक में हैं। मसलन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के ऊपर अज़ाब आ गया। वो अज़ाब आसमानी भी था और ज़मीनी भी था। वो इस तरह से कि आसमान से बारिश बरसी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने गोया कि आसमान के दरवाजे खोल दिए, ऐसी बारिश बरसी। और रिवायतों में आता है 40 दिन 40 रातें लगातार ऐसी तूफ़ानी बारिश जिसका इंसान तस्वीर भी नहीं कर सकता। अब सवाल है कि तो ठीक है, ऊपर से बारिश, नीचे से क्या हुआ? कहते हैं नीचे पानी जो ज़मीन के अंदर था उसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम उबल जाओ। तो ज़मीन को हुक्म दे दिया कि तुम ऊपर वाला पानी जज्ब नहीं करना, बल्कि जो तुम्हारे अंदर पानी है और फज्जर में लौयून, उसको बोला तुम अपना पानी बाहर निकालो। तो ज़मीन के जो अंदर पानी था वो चश्मों की शक्ल में ऊपर उबलता गया, ऊपर वाला पानी तो आ गया ही। ये पानी जमा होता रहा यहाँ तक कि वो पहाड़ों के ऊपर भी पहुँच गया। तो ये अज़ाब ऊपर से भी आ रहा था और नीचे से भी आ रहा था। तो ये है। इसी तरह से कौम आद के ऊपर हवा का तूफ़ान आया, और कुरान पाक में फरमाया सब अलयाली व समानियत अय्याम फसख्खना लहुम रिह। तो 7 दिन और 8 रातें मुसलसल आंधी चली, यानी दरमियान में 1 घंटे भी उसमें वक्फा नहीं हुआ। ये कुरान पाक में लिखा है। और ये आम हवा नहीं जैसे यहाँ चलती है। उसको अल्लाह ने फरमाया वो मैंने उनके ऊपर अज़ाब भेजा था, और वो अज़ाब ऐसा था कि फ़रिश्ते उस हवा को काबू करना चाहते थे तो फ़रिश्ते भी काबू नहीं कर पाते थे, ऐसी ज़बरदस्त। अल्लाह अकबर। तो सब अलयालिन व समानत अय्याम, 7 रातें और 8 दिन। ये गलत हो गया था, ये 7 रातें हैं, सब अलयाल क्या वो समानित अय्यामिन, तो 8 दिन। तो लगातार तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। दरख्त पकड़ गए, मकानात ख़त्म हो गए, उनकी ईंटें नज़र ही नहीं वो कहाँ गई थी। इसलिए लोग जो है वो बिल्कुल इस तरह गिरे पड़े थे। कुरान पाक ने फरमाया कान्नहुम आजाज़ नखलिन खाविया, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत किस्म के लोग थे और लंबे भी थे, कदावर भी थे। वो कहते थे कि हमसे ज़्यादा कोई ताकतवर दुनिया में हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको ऐसे गिरा दिया जैसे खजूर के दरख्त, जैसे खजूर के फ़तरल कौम फ़ीहा सरा। देखो मैंने उन कौम को किस तरह से पछाड़ दिया है। फ़हल तरा लहुम बिबाक़िया, ऐ देखने वाले देखो क्या एक भी फ़र्द बचा है उनमें? एक भी नहीं बचा। तो वो आसमानी अज़ाब था हवा का। इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने ऊपर से पत्थर बरसाए, और इतने पत्थर बरसाए थे कुरान पर मुसव्वमतन, उनमें नाम भी लिखा हुआ था। जिस दरख्त पर जिस पत्थर के ऊपर जिस शख्स का नाम लिखा हुआ था वो आके उसी के ऊपर गिर गया, तहवाला हो गया। फिर उसके बाद फरिश्ते आए, वो ज़मीन को उठा के ले गए, ऊपर लेके फिर उसको पटक दिया। तो ये ऊपर के अज़ाब थे। इसी तरह से फ़िरौन के ऊपर भी मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आए कि वो खून बनता था, पानी जो पानी पीते थे तो खून की शक्ल में तब्दील होता था। मेंढक जगह जगह, इसका बयान कुरान पाक में है, आगे आएगा इंशाअल्लाह। तो ये तरह तरह के अज़ाब थे। तो ज़मीनी अज़ाब भी, आसमानी अज़ाब भी। ऐसे ही वो अबरहा आया था काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए,
تو وہ اللہ ताला ने वो तैर अबाबील जो है उनको भेजा अबाबील को, और उन्होंने उनको वहीं ख़त्म कर दिया। तो आसमान से भी अजाब आ सकता है किसी भी शक्ल में, और ज़मीन से। इसी तरह से बाज़ मरतबा जो है वो आतिश फिशान पहाड़ फट जाता है, तो वो बस्तियों को जो है वो जला के राख और खाक करके रख देता है। तो इसी तरह से ज़लज़ले आते हैं, इसी तरह से समंदर से तूफ़ान उठते हैं, वो बस्तियों को तहबाला करके रख देता है, कुछ भी नहीं बचता वहाँ। इसलिए फरमाया कि ऊपर से भी अजाब आ सकता है और नीचे से भी अजाब आ सकता है। ऐसे ही फ़िरौन जो है वो ऊपर से अजाब नहीं आया, वो उसी में डूब गया समंदर में, तो ख़त्म। इसी तरह से कारून था, वो तो बहुत ही बड़ा मालदार था, तो कुरान पाक ने फरमाया फ़खसफ़ना, हमने उसको खस्फ किया। खस्फ के माने आते हैं ज़मीन के अंदर धसा दिया, तो वो ज़मीन खुल गई और उसी में चला गया। तो ज़मीनी अज़ाब और आसमानी अज़ाब, तो ये है। तो आसमानी अज़ाब के अंदर एक शक्ल ये भी है कि जो तुम्हारे अफसर हैं, जो तुम्हारे वो जो बड़े लोग हैं, और तो वो जालिम होंगे, तो वो तुमको अज़ाब चखाएंगे, तो वो अज़ाब दे देंगे अपने नीचे वालों को। तो ये गोया कि ऊपर वाला अज़ाब है, वो बदनामती करेंगे और उनको अज़ाब दे देंगे, तकलीफ़ पहुंचाएंगे, आवाम को सताएंगे। तो वो जो उम्माल होंगे, वो जो बादशाह होंगे, जो वज़रा होंगे, वो बहुत जालिम किस्म के होंगे, फासिक व फाजिर होंगे। तो ऊपर से अज़ाब आने की शक्ल वो भी है, क्योंकि जिस तरह से ऊपर के अज़ाब को आदमी बचा नहीं सकता, इस तरह से जो ऊपर से ही अज़ाब आता है बड़े लोगों की जानिब से, और छोटे लोग उसको फिर उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये फरमाया। इसीलिए एक हदीस पाक तो में बाज़ हज़रात फरमाते हैं, वो मक़ौला है, वो है अमालुकुम उम्मालुकुम। इसका मतलब तो ये है कि लोगों जो तुम अमल करते हो, आमाल, बुरे आमाल, तो ये बुरे आमाल ही जो तुम्हारे वो बादशाह और वज़रा और तुम्हारे बड़े वो हाकिम लोग हैं, ये उसी की शक्ल है। इसका मतलब क्या, वो तुम्हारे आमाल ख़राब होंगे तो तुम्हारे हाकिम वगैरह भी तो तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम्हारे हुकूक नहीं दिए जाएंगे, तुमको सताएंगे, तुमको तंग करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे आमाल ही की शक्ल है। तो ये फरमाया। तो इसमें यह आया कि आसमान से भी अजाब की ये शक्ल है, और नीचे से अजाब की एक शक्ल तो ये आई कि ज़मीन धंस गई, सैलाब आ गया। एक अजाब यह है कि जो तुम्हारे मातहत हैं वो दगाबाज होंगे, वो चोरी करेंगे, वो वफ़ा नहीं करेंगे, वो ख़यानत करेंगे, तो ये भी एक अजाब है। इसी तरह से फरमाया कि औलाद नाफरमान हो जाए, ये भी एक अजाब है। ये भी है कि ये भी गोया कि अपने मातहतों से, तो तहत का तर्जमा है, ये कुरान पाक अजीब है। तो एक तो फरमाया ऊपर से, क्या फरमाया, फ़ौक़ फरमाया, फ़ौक़। तो यहाँ आसमान का लफ्ज़ नहीं फरमाया, फ़ौक़। तो फ़ौक़ के माने आते हैं ऊपर। तो इस लफ्ज़ के अंदर ऊपर वाले अजाब भी आ गए, और जो हुक्काम वगैरह है तो वो भी इसमें अंदर दाखिल हो गए, और तहत के अंदर जैसे ज़मीन आ गई, और तहत के अंदर मातहत लोग भी आ गए। तो मातहत में मातहत भी आते हैं और अपनी औलाद भी। तो यह फरमाया कि तुम्हारे नीचे से मैं तुमको अजाब भेज दूँगा। इसलिए फरमाया कि जो मुलाजिम होंगे वो बेवफा होंगे, गद्दार होंगे, ये भी अजाब है। इसलिए बहुत सारे जो कंपनी वाले होते हैं या बड़े बड़े वो फैक्ट्री वाले या दुकानदार होते हैं, वो अपने दुकानों में मुलाजमीन को रख लेते हैं। तो बस वो एक अजाब होता है उनके ऊपर कि लाखों रुपए वो नुकसान हो जाते हैं उनका। वो होता ही है कि वो लोग ख़यानत करते हैं। ये बड़े बड़े कंपनियों में भी होता है, दुकानों में भी होता है। तो सब परेशान हैं अपने मातहतों की वजह से। वो गद्दारी करते हैं, वो चोरियाँ करते हैं। इसमें तफसील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आकल का इशारा काफ़ी समझ में आ गया। कितने लोग परेशान हैं, हाँ है, दुकान में इतनी आमदनी है, कुछ कहने की बात नहीं, फिर भी कर्जा है। तुम्हारी इतनी आमदनी, कर्जा कैसे करना, समझ में नहीं आता है। वो यही है कि जो नीचे वाले लोग हैं ये वो जो है करते हैं गद्दारी। तो ये अल्लाह का एक अजाब है। तो इस तरह से फरमाया कि कमा तकूनून युअम्मरु अलैकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हुक्काम मुसल्लत कर दिए जाएंगे, उमरा वैसे ही होंगे। वह खुलासा ये है कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे नीचे वाले भी वो फरमाबरदार रहें और जो ऊपर वाले भी हुक्काम वगैरह वो भी ठीक रहें, तो क्या करना है, कदम शिकायत करने के बजाय अपने आमाल को दुरुस्त करना है, ये फरमाया। तो इसके अंदर ये चीज़ भी आ गई कि नीचे से भी अजाब आ जाएगा और ऊपर से भी अजाब आ जाएगा। तो जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी होती है तो जो ऊपर जो हुक्काम होते हैं
अल्लाह तबारक ताला उनके दिलों को नरम बनाते हैं। वो बड़े शफीक और मेहरबान होते हैं, उनके दिलों में शफ़क़त और रहमत डाल दी जाती है। और जो नीचे वाले होते हैं वो भी अपने बड़ों का इकराम एहतराम करते हैं, खिदमत कर लेते हैं। तो ये फरमाया। इसीलिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी अमीर और हाकिम का भला चाहते हैं तो उसको वज़ीर अच्छा देते हैं, और उसके जो बाकी होते हैं मुशीर वगैरह वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो भूल जाता है तो वो याद दिलाते हैं। और अगर कोई आदमी गड़बड़ी हो और नाफरमान हो तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो उसके ऐसे साथी देते हैं, ऐसे वज़रा वगैरह जो होते हैं तो जो उसका सत्यानाश करके रख देते हैं। तो बहरहाल वो बुरे आदमी में फंसा रहता है। तो वो लोग हर वक्त ये देखते हैं किसी तरह से ये गिर जाए और वो हो जाए, ये हो जाए। तो इस तरह से ये फरमाया कि जब आदमी अल्लाह की फरमाबरदारी करता है तो अल्लाह तबारक ताला उनके ऊपर नेक हाकिम भेजता है, और उनकी औलाद और उनके मातहत उनके शागिर्द सारे जो होते हैं वो भी सालेह होते हैं। तो हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते हैं कि अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो मैं उसका असर अपने बाल बच्चों में भी पाता हूँ, हत्ता कि सवारी के जानवर में भी। यानी अगर मुझसे कोई कोताही हो जाए तो देखता हूँ कि सवारी का जानवर जो है वो आज चढ़ने नहीं देता है, तो बहुत परेशान करता है, मुझको काबू में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि कोई कोताही मुझसे हुई है। तो एक और बुज़ुर्ग के बारे में लिखा है, जब उसकी बीवी और बच्चे नाफरमान होते थे, इन्हें मानते नहीं थे, तो वो आके मुसल्ला बिछाता था और अल्लाह ताला से कहता था कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो याद दिलाता है कहाँ कोताही हुई है, तो फलां जगह कोताही हुई है, बस अल्लाह से मामला साफ़ कर लिया। वापस घर आ गया तो बीवी बच्चे उससे माफ़ी मांगते थे कि हमसे गलती हो गई। तो ये एकदम अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल देते थे। इस तरह से फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला आसमान से भी अजाब भेज सकता है और ज़मीन से भी अजाब भेज सकता है, और अजाब ऐसा होगा कि उस अजाब से कोई किसी को बचा नहीं सकता। तो ये अजाब की दो किस्में हो गई। अब अजाब की जो तीसरी किस्म है, ये अजाब की तीसरी किस्म बहुत ख़तरनाक ये किस्म है। ये कौन सी किस्म है कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया औ यलबिसकुम शिया, औ यलबिसकुम शिया। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक रिवायत है। आप बनु मुआविया के वहाँ मस्जिद में पहुँच गए, कुछ सहाबा किराम साथ थे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगी, 3 दुआएं अल्लाह ताला से मांगी। कितनी? 3 दुआएं। एक दुआ तो अल्लाह से ये मांगी कि अल्लाह मेरी उम्मत जो है ये गर्क न हो जाए, यानी ऐसा सैलाब आए, तूफ़ान आए, ये सब मिट जाएं, और ऐसे मेरी उम्मत जो कहत की वजह से सब ख़त्म न हो जाए। ये दुआएं। तीसरी दुआ की मेरी उम्मत आपस में लड़े नहीं, मेरी उम्मत आपस में लड़े। तो पहली 2 दुआओं के बारे में आपने फरमाया कि ये 2 दुआएं तो अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली, लेकिन तीसरी दुआ से मुझे मना किया गया, तीसरी दुआ से मुझे मना किया गया। तो उस वक्त आपने ये 2 दुआएं मांगी थी। और जब ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तबारक ताला कादिर हैं इस पर कि ऊपर से अजाब आए, तो आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी उम्मत को इस अजाब से बचा लीजिए। तो फिर दूसरी आयत कि नीचे से अजाब आ जाए, आपने फरमाया या अल्लाह इससे भी मैं पनाह मांगता हूँ। तो तीसरा फरमाया कि उनके टुकड़े हो जाएंगे, पार्टियाँ हो जाएंगी, तो एक दूसरे को ऊपर अजाब कर लेंगे, मारेंगे। तो फरमाया कि बस तीनों में से तो एक तो होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये तीसरा ही तो फिर क्या है, उन 2 के मुकाबले में कम है। हालांकि ये तीसरा भी जो कोई कम नहीं लिखा है मुफस्सिरीन ने कि ये उन 2 के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है ये तीसरा। उसकी वजह यह है कि पहले अजाब आ जाता तो सारे के सारे चले गए उसी में, तो कुछ रहा ही नहीं बाकी। लेकिन यहाँ तो कुछ मारे जाते हैं, कुछ जिंदा हैं, आग लगा दी जाती है और क्या क्या किया जाता है। तो इस तीसरे से भी अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे उनको मना किया गया। अब इसमें यह आया औ यलबिसकुम शिया, औ यलबिसकुम शिया, इसका मतलब क्या है? ये यलबिस जो है ये असल में निकला है लुब्स या लब्स से। लबिस यलबसु के माने आते हैं, जैसे लिबास को भी कहते हैं जो पहना जाए और किसी चीज़ को छुपा ले, क्या कर ले? लिबास को लिबास इसलिए कहते हैं ये बदन को क्या कर लेता है, ये बदन को छुपा लेता है। तो यलबिस का लफ्ज़ आया है। इसका मतलब तो ये है जिस तरह से लिबास किसी आदमी को छुपा लेता है और वो कपड़ों के अंदर आता है, तो इसी तरह से ऐसा होगा कि जब वो अजाब आ जाएगा गोया कि वो भी लोगों के ऊपर मुसल्लत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुसल्लत हो जाएगा। अब यलबिसकुम, तो
शिया, ये शियातुन की जमा है। इसका मतलब क्या है? असल तर्जमा इसका है किसी का पैरोकार और ताबे। कुरान पाक में है व इन मिन शियातिही ला इब्राहीम, कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चलने वाले हैं इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अब शिया किसको कहते हैं? शिया का लफ्ज़ है ऐसी जमात, क्या ऐसी जमात जो किसी ख़ास गरज के लिए जमा हो जाए और एक दूसरे के उसमें वो क्या हो, मुआविन हो। ये यानी जिसको आजकल की ज़बान में पार्टी कहें, क्या कहें, ये एक फ़िरका, ये फरमाया अल्लाह ताला ने। तो गोया कि अब आयत का तर्जमा ये हुआ कि अजाब की एक किस्म यह है कि कौम जो है मुख्तलिफ पार्टियों में बट जाएगी, बटने के बाद ये आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो जब लड़ेंगे तो एक दूसरे को अजाब कर लेंगे, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कमज़ोर वाले को दबाएगा और क्या क्या करेगा। तो ये फरमाया। तो इस आयत के नज़ुल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ख़ास तौर से फरमाया ला तरजिउ बादी कुफ़ारा, मेरे बाद में काफिर न होना, मेरे बाद में। ज़ाहिर सी बात है काफिर कैसे हो जाएंगे? फरमाया यदरिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, कि तुम में एक दूसरे की गर्दन को मार डालेगा, ऐसा न करना। ये बहुत ताकीद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ताकि मेरी उम्मत जो आपस में जंग जदल से तबाह न हो जाए। अब ये झगड़े फिर किस किस बुनियाद पर दुनिया में चले? कहीं तो ज़बान की बुनियाद पर, इनकी ज़बान अलग है, हमारी ज़बान अलग है। मुसलमानों के अलावा दूसरे के यहाँ तो रंग पर भी, रंग नस्ल पर भी झगड़े हो गए, काले और गोरे के झगड़े हो गए। अब सवाल ये है कि एक दूसरे को मज़ा चखाएंगे, इससे क्या मुराद है? कहते हैं क्या इससे मुराद है कि कुफ़ार मुसलमानों से लड़ेंगे? फरमाते वो तो है ही, लेकिन मुसलमान भी आपस में लड़ेंगे, ये भी इसका मतलब है। और मुफस्सिरीन ने यही माना लिखा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद में काफिर न हो जाने, एक दूसरे की गर्दन न मारना। तो ये फरमाया कि कौम की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, रंग की नस्ल की बुनियाद पर भी लोग बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से वो पार्टियां बन जाएंगी, एक दूसरे से फिर क्या करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। और इलाकाई बुनियादों पर भी ये एक दूसरे से लड़ेंगे। ये हमारा इलाका है, ये उनका इलाका है, ये मुल्क वाला इस मुल्क पर बमबारी करेगा, ये मुल्क इस मुल्क पर बमबारी, हालांकि वो भी मुसलमान है और ये भी मुसलमान है, लड़ेंगे ज़रा ज़रा सी बात पर, तो इलाकाई उसके ऊपर लड़ेंगे। तो वरना ये फरमाया ये है अरबी, मिस्री, शामी, तुर्की, हिंदी, चीनी वगैरह सोरे, ये अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया है, ये सिर्फ फरमाया लितारफ़ु, क्या ये सिर्फ तारुफ के लिए था कि ये फलां मुल्क का रहने वाला, ये फलां कबीले का है, ये फलां कबीले का है। वरना तो असल में ये सारे मुसलमान तो एक ही हैं, लेकिन इन बुनियादों पर भी क्या लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो फरमाते हैं कि जो साले होते हैं, अल्लाह के मानने वाले होते हैं, उनके यहाँ मशरिक़ व मगरिब, जुनूब शुमाल कोई बात नहीं है। तो मशरिक़ और मगरिब दोनों तो एक ही हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल मोमिनून जसदिल वाहिद, तमाम दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। किसकी तरह? इन इश्तका आइनहु इश्तका कुल्लुहु, अगर आँख में दर्द हो तो पूरे बदन में दर्द महसूस होता है। व इन इश्तका रासु इश्तका कुल्लुहु, अगर सर में दर्द हो तो सारा बदन दर्द महसूस कर लेता है। ये नहीं कि जनाब दर्द तो आँख में है और पाँव तो अपना आराम से सो रहा है, ऐसा नहीं। पाँव भी सोएगा नहीं उस दिन, बिल्कुल दौड़ धूप में रहेगा, हाथ भी नहीं सोएगी, हत्ता ज़ुबान भी नहीं सोएगी, ज़बान वो तो वह करती रहेगी। इसलिए फरमाया कि सारे मुसलमान तो जसदे वाहिद की तरह है। मशरिक़ के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचेगी तो मगरिब का मुसलमान तड़प जाएगा, और जनूब के मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचेगी तो शुमाल का मुसलमान तड़प जाएगा, ये आपने फरमाया। तो डॉक्टर इकबाल मरहूम का एक शायर भी है, बहुत बेहतरीन शरीफा, दुर्वेश खुदा मस्त, क्या इसको मुफस्सिरीन ने नकल किया, दुर्वेश खुदा मस्त, न शर्क़ी न गरबी, न शर्क़ी न, जो अल्लाह वाला होगा, अल्लाह का दीवाना होगा, न वो मशरिक़ का होता है न वो, यानी उसको ये मशरिक़ और मगरिब वाली तकसीम वो करना नहीं चाहता है। और घर उसका न दिल्ली, न सफ़ा, न समरकंद, उसका घर तो कहीं है ही नहीं। मतलब तो है कि सारा जहाँ उसी का है, सारा जहाँ, मतलब एक कौम की बुनियाद पर वो लड़ेगा नहीं, और इसी तरह से वो इलाकों की बुनियाद पर वो मुसलमान से लड़ेगा नहीं, ये फरमाया। तो फरमाते हैं कि ये तीसरा अजाब है, ये कि जब जमातें हो जाएंगी और पार्टी हो जाएगी और वो एक दूसरे को मारेंगे। वो मारेंगे क्यों? कहते हैं कि नज़रियात का इख्तिलाफ होगा। क्या होगा? उसकी वजह से एक पार्टी हो जाएगी, एक पार्टी हो जाएगी। अब ये अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे मालूम हुआ
इन बुनियादों पर मुसलमान को नहीं लड़ना चाहिए। अगर इन बुनियादों पर लड़ेगा, समझ लेना चाहिए अल्लाह ताला का अजाब है, ये कोई खूबी नहीं है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ लड़े, और एक कौम दूसरी कौम के साथ लड़े, और एक इलाके वाले दूसरे इलाका वालों के साथ क्या गाँव में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, हरपुर बनपुर कमन जी, ज़रा सा कुछ हुआ तो बस गई पानवन क्या लड़ाई, गाँव वाले पानवन क्या गसन लड़ाई, कुछ दास जुमा लड़ाई गसन क्या थाएं गो तो बस न्यू हमो अपर में परे जुमा अलग खड़ी अपर में पुरो, ये झगड़े हो जाते हैं। तो इन बुनियादों पर जो झगड़े हो जाएंगे उसको आदमी कोई कमाल समझेगा, अपना फौरन इस आयत को जहन में लाना चाहिए, ये तो अल्लाह का अज़ाब है, ये तो अल्लाह का, इसमें कोई खूबी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको अल्लाह तबारक ताला ने अजाब के साथ शुमार किया। कहा अजाब की 3 किस्में हैं, या तो आसमान से अजाब आएगा, या तो ज़मीन से अजाब आएगा, या तो आप एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, घर जलाएंगे, दूसरों को वो कर लेंगे, और क्या इज्जतों पर हमला करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये अजाब की और किस्म है। ये अजाब आता क्यों है? फरमाते हैं जिस तरह से गुनाहों की वजह से आसमानी अजाब आता है, ज़मीनी अजाब, इस तरह गुनाहों की वजह से ही, उसकी नहुसत की वजह से आदमी जो आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं। कहीं दुनिया की मोहब्बत गालिब आती है, कहीं और कोई चीज़ गालिब आती है। तो इसलिए इख्तिलाफ से बचने की अल्लाह के नबी ने बहुत ताकीद फरमाई है। अब पार्टियां हैं, ये इख्तिलाफ मज़मूम है, क्या है, ये बुरा है। अब सवाल ये है कि फ़ुक़हा के दरमियान जो इख्तिलाफ है तो क्या वो भी इसी किस्म का है? वो इस किस्म का नहीं। उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, मेरे उम्मत का जो इज्तिहादी बुनियाद पर जो बज़ाहिर इख्तिलाफ होता है उसमें वसअत है और वो रहमत है मेरी उम्मत के लिए। क्या है? वो रहमत है। वो क्या है? वो इख्तिलाफ नफसानियत की बुनियाद पर नहीं, वो इख्तिलाफ कौम की बुनियाद पर नहीं, कबीलों की बुनियाद पर नहीं, इलाकों की बुनियाद पर नहीं, कुर्सी की बुनियाद पर नहीं। वो इख्तिलाफ तो है ही नहीं अवलन इख्तिलाफ। वो क्या है? वो दलाइल की बुनियाद पर। क्या? एक भी चाहता है कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, दूसरा भी चाहता है कि मैं सही नुक्ते पर पहुंच जाऊं, और फिर इसके बावजूद भी वो एक दूसरे का इतना इकराम करते हैं, इतना एहतराम करते हैं, अल्लाह अकबर। अब तो वो लड़ाई हमारी नहुसत की वजह से हमने उसको लड़ाई बना ली, वरना वो लड़ाई का सवाल ही नहीं। इसलिए कि पहले ज़माने में एक दूसरे से इतना इकराम एहतराम करते थे। किताबों में वाक़या लिखा है, इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा, वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के जहाँ उनका मज़ार शरीफ है, वहाँ करीब में मस्जिद है, वहाँ गए, ज़ियारत कबूर भी कर लिए, और अपने बड़े तो थे ही, किसी के उस्ताद के उस्ताद, क्या जी, इसलिए इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के उस्ताद इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा, और वो उनके सौतेले बाप भी हैं। इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा के वालिद साहब का इंतकाल, उसका इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो उनका इसमें था इदरीस, क्या इदरीस जी, हज़रत इदरीस अलैहिर्रहमा। तो उनके बेटे थे ये मोहम्मद बिन इदरीस। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा का नाम मुबारक है मोहम्मद, क्या वालिद साहब का नाम इदरीस। उनका इंतकाल हुआ, फिर उनकी वालिदा मोहतरमा का निकाह हुआ इमाम मोहम्मद के साथ रहमतुल्लाह, और इमाम मोहम्मद ने इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा को पाला है क्योंकि छोटे थे, और इमाम मोहम्मद हैं शागिर्द किसके? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के। इसलिए इमाम मोहम्मद ने पढ़ाया है किनको? इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा को। तो जाहिर सी बात है, तो इधर से तो वालिद साहब भी थे इमाम मोहम्मद, और उस्ताद भी थे, मुर्शिद भी थे, रहबर भी थे, उन्होंने उनको पढ़ाया है। लेकिन बहुत बड़े इमाम वो भी बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको इमाम अबू हनीफा से, इमाम मोहम्मद से नफ़रत थी, जंग जदल थी, नहीं। बस इज्तिहादी बुनियाद पर बाज़ मसाइल अपने इज्तिहाद के एतबार से जो उनको हक़ नज़र आए उन पर अमल कर लिया, वरना वो तो इकराम एहतराम, इसलिए कि उस्ताद के उस्ताद हैं, तो सिलसिला चल रहा है, मिल रहा उनके साथ। तो वहाँ गए, तो वहाँ नमाज का वक्त था, तो इमाम शाफ़ी रहमत रफ़ेदन करते हैं, वहाँ तो रफ़ेदन किया ही नहीं, रफ़ेदन सीधे नमाज पढ़ ली ऐसी बगैर रफ़ेदन की। तो शागिर्द ने बोला हज़रत आपने रफ़ेदन नहीं किया? फरमाया कि आज अपनी तहक़ीक़ को अलग रख दिया। क्या? आज हज़रत की इक्तिदा करनी। किसकी? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। इतनी मोहब्बत और प्यार आपस में था, ऐसे आपस में मिलते रहते थे। हज़रत मुफ्ती साहब अलैहिर्रहमा के शागिर्द और मुरीदीन बहुत बड़ी तादाद में शवाफ़ी मसलक के थे, इसलिए कि पूरे आलम में उनके वो मुरीदीन होते थे। तो एक मरतबा लिखा, एक बुज़ुर्ग जो है वो हनफी मसलक के थे, वो पहुँच गए वहाँ, किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात करने के लिए, शाफ़िल मसलक थे। तो उन्होंने अपने शागिर्दों से बताया, देखो ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब वाला मसला नहीं है, औला और गैर औला मसला है।
چونکہ ہمارے حضرت جو ہیں وہ شافعی المسلک کے ہیں، آج وہاں جائیں گے تو آپ آمین زور سے کر لینا، کیا کر لینا. تو وہ جو وہاں بزرگ تھے انہوں نے کہا دیکھو آج ہمارے یہاں مہمان آ رہے ہیں، وہ